Hello everyone. So in the last lecture we have started if and else statement, and I guess we are done with the ladder in if else statement, nested if else statement. On that topic we had seen how we can write the if else inside the another if else. We create one loop. We create one infinite loop up to n number. On that loop we can write if else statement another one if else statement into another if else statement. Okay, so uh, similarly we also seen the else if statement, means the ladder, the if else ladder. On the if else ladder the else didn't have any block. uh, सिर्फ जो लास्ट एल स्टेटमेंट था, that else statement got one block, but the rest of the else statement didn't got any block of code, block of statement. Okay, so if the condition is true then perform this, else another if statement, else another if statement, means वो else if ladder create हो रहा था. ठीक है. Okay, और next looping statement, because those are the decision making and branching statement, right? Not looping, decision making and branching statement. If else ladder, then nested if else. Okay, and the last one is स्विच स्टेटमेंट, जो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, a switch statement. So as the name suggests, switch means either we can on, either we can off. जो अपना normal switch काम कर रहा है वो. So we can switch into the different state according to our choice, as per the needs. So it allows variable to tested for equality against a list of values. So there are n number of values, and using one test condition we test that individual condition for equality. Means we have n number of values, okay, but we have to select only one, we have to choose only one, we have to switch on that position. So using the condition, using this appropriate condition, we can uh, choose, we can select that condition, sorry, we can select that result, we can select that list to jump on to activate that list. Okay, so to do that we perform one condition, and each value is called a case. So as we said earlier, against list of values, so the values, the each of these values is called as case. Okay, and the variable being switched on is checked for each switch case. Okay, so जो वेरिएबल चेक होने वाला है वही फिर डिपेंडिंग ऑन द केसेस वो चेंज होगा. सो स्विच क्या है बेसिकली, we can switch into any point, any case, whichever we want to select, but that selection criteria is based on the uh, test condition scenario. Okay, if the test condition scenario is satisfied for that individual case, then that case will be activated. The switching scenario, the switching task will be completed if the condition is satisfied over that list value या फिर वो over that case. Okay, so the syntax for a switch statement in C programming language is as follows. यहाँ पे देखो, switch पहले लिखना है मुझे, switch कीवर्ड यूज करना है. switch क्या है, एक कीवर्ड है. so use this keyword switch, जैसे कि हम लोग ने if else यूज किया था, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं switch. ठीक है, so switch लिखा, उसके बाद expression. now that expression will be जो कुछ भी वेरिएबल रहेगा, या फिर हाँ वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं. सो वेरिएबल, वो वेरिएबल क्रिएशन का काम कर रहा है एक्सप्रेशन में. देखो, द एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इंटीग्रल और इनन्यूमरेटेड टाइप और बी क्लास टाइप इन विच द क्लास हैज सिंगल कन्वर्जन फंक्शन टू एन इंटीग्रल और इनन्यूमरेटेड टाइप. ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है, हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. बहुत ही बेसिक आइडिया, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है. सो दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट वन वेरिएबल वैल्यू. okay, after that there are n number of cases, like देखो यहाँ पे this is my first case. Then the case is uniquely identified by this constant expression. Okay, so this constant expression will be my the constant expression is written as
द नंबर या फिर अल्फ़ाबेट्स A B 1 2 3 4 या फिर कैपिटल A B स्मॉल A B ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज ये 1 है, सो यहाँ पे सेकेंड ये केस 2 आएगा, ठीक है। सपोज केस 1 इज ट्रू, देन दिस block of code will be executed once, okay। switching means what? switching means if the condition is true, if जैसे कि आप लोग ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, ये डिसीजन मेकिंग है और ब्रांचिंग है। सो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होने वाला है, एंड देर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, देर आर इन नंबर ऑफ ब्रांचेस। इफ द condition is satisfied for this case, then this block of code, this statement will be performed, okay। the output will be this statement। और अगर नहीं है तो फिर ब्रेक, वो प्रोग्राम फ्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन और ये स्विच वाला एक्सप्रेशन, इफ दोज expression are matched, if those expressions got synchronized connection between each other, so this statement, this block of code gets performed, and that will be my output of the program, okay। otherwise हम लोग break यूज कर रहे हैं to break the program flow for that individual point, for that ये सिर्फ ये केस के लिए, मतलब ये पूरा केस ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं हम लोग टू ब्रेक द करंट पॉइंट, ठीक है। एंड प्रोग्राम फ्लो then continue its then program flow will do the continuous iteration after the break, मतलब ये सिर्फ केस ब्रेक करने वाला है और उसके बाद जो प्रोग्राम फ्लो है वो कंटिन्यू चलने वाला है, ओके। यहाँ पे देखो मैंने बोला स्विच स्टेटमेंट रहेगा एक, उसके बाद इन नंबर ऑफ केसेस रहेंगे, ठीक है। सपोज स्विच केस में स्टेटमेंट रहेगा कि डे सपोज हम लोग कंसिडर करेंगे डे, ठीक है। सो अगर डे 1 है तो स्टेटमेंट क्या होगा, मंडे, हाँ, या फिर ब्रेक। अगर डे 2 है तो क्या होगा, ट्यूसडे, ठीक है, ब्रेक। हाँ, ऐसे मतलब मुझे सिर्फ वर्किंग डे ही प्रिंट करने हैं, आई वांट टू प्रिंट ओनली वर्किंग डेज। बट इफ एनी केस द यूजर प्रिंट द संडे, द 7 वैल्यू या फिर 8 वैल्यू अगर उसने प्रिंट की, ठीक है, सो द केसेस डिडंट हैव दैट संडे वैल्यू, ठीक है। द केसेस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला है कि 1 to 10 नंबर पे मुझे प्रिंट करना है, स्विच स्टेटमेंट बनाना है, पर सपोज इन केस यूजर ने 11 नंबर प्रिंट दिया, मतलब इसके बाहर के रेंज का नंबर प्रिंट कर दिया, हाँ, द केसेस आर नॉट प्रिपेयर्ड, द केसेस आर नॉट रेडी टू गेट दैट इनपुट वैल्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दे डिडंट हैव द इनपुट वैल्यू। सो ऑन दैट केस we we can catch the unexpected value using this default statement। so अगर वो मंडे से सैटरडे तक नहीं है, so that will be my संडे ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या है, if by any chance the cases will not perform as per, the cases didn't have the value as the user passes the input value, so the default statement will be performed, ओके। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ब्लॉक डायग्राम है उसका फ्लो चार्ट। आई एम पासिंग वन इनपुट वैल्यू एज अ एक्सप्रेशन, ठीक है, जो स्विच में कैरी हो रहा है। आफ्टर दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी टेस्टेड बाय n नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। सपोज केस 1, इफ द केस 1 इज ट्रू देन परफॉर्म कोड ब्लॉक 1, if not then break will be used to terminate the individual point and the program flow goes on to the next case, okay। then case 2 हो रहा है, if the case 2 is true then this code for block 2, मतलब जो individual उसका block है वो perform होगा, otherwise break statement will perform and program flow goes on to the next case 3, हाँ, until अप टू इन नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे 3 दिए हैं, वैसे मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, कितने भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सपोज ये केसेस में मेरी इनपुट वैल्यू नहीं है, द केस डजंट कैरी माई इनपुट वैल्यू, देन switch statement have the default section and that default section will be performed if the input value does not match with the this case value, ठीक है। the case value if suppose यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं, हाँ, suppose my program consists this case 1 case 2 and case 3 and I'm passing expression value as 4, case 4, okay। so the program didn't have the case 4,
सो इफ या केस 4 मैंने फॉर एग्जांपल बोला, केस 5 मैंने दिया या फिर 24 दिया या फिर 524 दिया. सो ऑन दैट केस the program flow print the default value as the switch statement have the default block, default block, and this code block n will be performed while we are passing the unexpected value. ठीक है, और वो एग्जिट हो जाएगा. एग्जांपल देखते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा. सी हियर, हेडर फाइल दिया है मैंने, उसके बाद मेन फंक्शन. ओके, कैर ग्रेड बी. अभी ये क्या है मेरा, ये मैंने एक वेरिएबल, आई एम इनिशियलाइजिंग वन, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वन वेरिएबल, हाँ, विच इज लोकल वेरिएबल. देखो यहाँ पे कमेंट दिया है. सो उसका नाम क्या है, ग्रेड नाम है उसका. उसका डेटा टाइप कौन सा है, कैरेक्टर. जैसे हम लोग इंट लिखते हैं वैसे कैरेक्टर लिखा है. वाई आई एम राइटिंग द डेटा टाइप एज अ कैरेक्टर फॉर द ग्रेड, बिकॉज आई एम पासिंग वन कैरेक्टर वैल्यू, नॉट द नंबर वैल्यू, नॉट इंटीजर और डेसिमल वैल्यू. ठीक है, ओके. सो आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग वन स्विच स्टेटमेंट. जैसे कि मैंने पहले इफ एल्स किया था, अभी मैं कर रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट, बिकॉज वी आर सीइंग हियर द एग्जांपल ऑफ स्विच स्टेटमेंट. ओके, in this switch statement I am passing the grade value, means I am testing the expression as grade, and I am already initializing the grade value here. okay, but यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेशन रहता है ना, यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ग्रेड मैंने दिया है. ठीक है, ओके. अभी केसेस है, वन देखो, ए बी सी डी और एफ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 केसेस है. ओके, सो फर्स्ट केस टेल्स इफ द ग्रेड इज ए. हाँ, ये ग्रेड की वैल्यू अभी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने स्विच एक्सप्रेशन दिया एंड उसके बाद केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन. कांस्टेंट मीन्स जैसे मैंने बोला था वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन द कांस्टेंट वैल्यू विल बी नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो अगर वैसी वैल्यू है, सो दिस इज माई कांस्टेंट. हाँ, कांस्टेंट एक्सप्रेशन ए. इफ द केस इज ए, सो प्रिंट क्या होने वाला है, एक्सेलेंट. ठीक है, या फिर स्लैश एन पे दूसरी वैल्यू आएगी, अगर नहीं है तो केस ए. ठीक है, और ब्रेक कर दिया मैंने, मतलब ये यहाँ पे उसका फ्लो खत्म हो गया. केस की वैल्यू ए है क्या, नहीं है. केस की वैल्यू क्या है, बी है. ठीक है, सॉरी, ग्रेड की वैल्यू बी है. हाँ, और ए नहीं है, मतलब बी. केस बी क्या है, कुछ भी नहीं है. हाँ, केस बी कुछ भी नहीं है. ठीक है, उसके बाद केस सी क्या है, केस सी प्रिंट एफ वेल डन. अगर मैंने सी दिया होता तो क्या प्रिंट होता, वेल डन. ब्रेक किया, डी प्रिंट किया था तो यू पास्ट. ओके, इफ आई एम प्रिंटिंग एफ, सो द वैल्यू इज बेटर ट्राई अगेन, बेटर ट्राई अगेन. ओके, देन डिफॉल्ट वैल्यू इज इनवैलिड ग्रेड. ओके, सो अगर इसमें से कोई भी नहीं है वैल्यू, इसमें से अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, सो आउटपुट क्या आने वाला है. सपोज मैंने ए बी सी डी एफ छोड़ के कुछ भी प्रिंट किया तो आउटपुट आने वाला है इनवैलिड ग्रेड. ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये देखो स्विच की स्टेट यहाँ पे बंद क्लोज हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है मेरा, इसका और ये स्विच स्टेटमेंट का कुछ लेना देना है क्या, नहीं है, क्योंकि स्विच यहाँ से चालू हो रहा है और वो यहाँ तक खत्म हो रहा है. ठीक है, सो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट होने वाला है, इसका और स्विच का कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की है बी. सो बी डजेंट हैव एनी कोड. सो यहाँ पे उसने सी का कोड प्रिंट किया है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ऐसा नहीं प्रिंट होना चाहिए. बी में कुछ भी वैल्यू नहीं है, सो वो ब्लैंक ही आएगा. और यहाँ पे जो योर ग्रेड इज है परसेंट सी, सो परसेंट सी की वैल्यू क्या है, मेरी कैरेक्टर वैल्यू बी. सो वो यहाँ पे बी आने वाला है प्रिंट होके. ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आप भी थोड़ा गूगल करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो आपके टर्मिनल पे स्विच स्टेटमेंट के, खुद से प्रोग्राम बनाओ, आपका रिजल्ट बनाओ, आपके डे की लिस्ट बनाओ, मूवी की लिस्ट बनाओ. ठीक है, और ट्राई करो. और आपका कल यूटी है, सो इसीलिए हम लोग यहाँ ही ख़त्म करेंगे स्विच स्टेटमेंट तक. और यूटी के प्रिपरेशन करो, स्टडी करो. ऑल द बेस्ट सबको. ठीक है, सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी टॉपिक है, एक ही टॉपिक बचा है लूपिंग वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनिश कर देंगे. ठीक है, थैंक यू.